Jesus is Lord Ministries, building relationship with God. Now let's learn what we have today. और आज जो हमारे पास है हम वो सीखेंगे। Romans 7 quickly रोमी की किताब 7 and verse 1. पहला वचन, Pay attention. ध्यान दीजिए, Very important. ये बहुत जरूरी है। To those people who say, जो लोग कहते हैं I use the law मैं व्यवस्था का इस्तेमाल करता हूँ, because I know, brother, that I've been set free from the law. क्योंकि मैं जानता हूँ भाई कि व्यवस्था से मैंने आजादी पाई You है। know, I practice the law daily because it keeps me holy. पर व्यवस्था का पालन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि पालन करने के द्वारा मैं पवित्र जीवन बिताता I know हूँ। Jesus Christ has set me free, that's all fine. But you know, I use the law daily for purification. मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था से आजाद किया है। Okay. ये सभी बातें ठीक है, पर मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ ताकि मैं पवित्र जीवन Yeah. बिताऊं, So that I can bear much fruit ताकि मैं और फल उत्पन्न कर and I can पाऊं live a holy life. और मैं पवित्र जीवन बिता Okay, पाऊं। let's read. आइए Romans हम 7:1. पढ़ें। Are you रोमी there? की किताब 7:1 Know you not, brethren, कि हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते how that the law hath dominion over a man as long as he lives. कि जब तक एक मनुष्य जीवित है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती Okay, है। the law has dominion over a man एक मनुष्य के ऊपर व्यवस्था Listen. तब तक प्रभुता करती है as long as he lives. जब तक वो जीवित रहता है। Okay? Amen. The law cannot have dominion over a dead man. व्यवस्था किसी मरे हुए व्यक्ति पर अपनी प्रभुता नहीं चला A dead सकती। man cannot be punished. एक मरे हुए व्यक्ति को हम सजा नहीं दे You सकते। cannot put a dead corpse in jail and say, no, you're going to pay for what you've done wrong. या He's एक dead. मरे हुए शव Yeah? को आप जेल में नहीं डाल सकते कहकर कि तुमने पाप किया है, अब तुम्हें Right? जेल में सजा So, काटनी होगी। once a man is dead, the law has no dominion over him. तो एक बार जब एक मनुष्य मर Right? जाता है तो फिर व्यवस्था अपनी प्रभुता उस पर नहीं चला Because after सकती। you're dead, you cannot put anyone in prison and say, okay, now, the law says you are punished, so you bear all the consequences. No. As long as he's alive, जब यदि कोई मर जाए तो आप उसे जेल में डालकर सजा नहीं दे सकते, पर जब Yeah? तक एक व्यक्ति जिंदा है, as long as he's alive, the law has dominion over that man. जब तक एक व्यक्ति Okay, जिंदा now है read. तब तक व्यवस्था उस पर प्रभुता चला Verse सकती 2. है। दूसरी आयत, For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति Yeah? के जीते जी उससे बंदी है। Now, you need to read these verses, okay? आपको ये वचन पढ़ने हैं। But if the husband be dead, पर यदि उसका पति मर जाए she's loose from the law of her husband. तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई So है। here what it's saying is, तो now, यहाँ पे क्या लिखा है? here it's speaking of a woman तो यहाँ पे एक स्त्री के बारे में कहा गया who's है bound by her husband. जो अपने पति से जुड़ी Okay. हुई है। So the woman here is you. तो ये जो यहाँ पे स्त्री का उल्लेख किया गया है वो आप हैं। We are the bride of Christ. आप मसीह की दुल्हन हैं। So you are the woman here. तो यहाँ पर स्त्री जो है वो आप हैं And here the husband is law. और हम जानते हैं यहाँ पे पति व्यवस्था है। Okay, now read. फिर से Now हम read with an पढ़ेंगे। understanding. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband as long as he liveth. क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है। So the husband तो यहाँ पे जो पति है is law, वो व्यवस्था है, Mr. Perfect. जो बिल्कुल सिद्ध है। You cannot do anything wrong. आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, Because the time you do anything wrong, क्योंकि जिस क्षण आप कुछ गलत करते the हैं law is going to whack you. तो व्यवस्था आपको सजा देगी। If he sees the room not cleaned properly, he's going to whack you. यदि आपने अच्छे से कमरा साफ नहीं किया है तो वो आपको सजा देगा। If the clothes are not arranged properly, he's going to whack you. यदि आपने कपड़े अच्छे से नहीं धोए हैं तो यही व्यवस्था आपको सजा देगी। Yeah? So the law is Mr. Perfect. तो जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सिद्ध He है। wants the room very clean. वो चाहता है कि कमरा बिल्कुल साफ हो, He wants the clothes very clean. वो चाहता है कि कपड़े भी बिल्कुल साफ He wants सुथरे the हो, clothes ironed perfectly. वो चाहता है कि कपड़े बिल्कुल अच्छी तरह से And इस्त्री किए every हों, single button on his collar put perfectly. और Okay, कॉलर so- के हर एक बटन जो है हमने अच्छे से पहने हैं। So Mr. Law is a guy of demands. तो जो व्यवस्था है वो हमेशा मांग करती So you है। cannot do anything wrong. तो आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। You do wrong, you're going to have it. यदि आप Okay? गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। So what does it say? The तो यहाँ woman पे which क्या- is bound to the law of her husband as long as he liveth. कि जब तक उसका हाँ? पति जिंदा है तब तक वो स्त्री अपने पति से Now, बंधी हुई है। further. आगे, But if the husband be dead, पर यदि उसका पति मर जाए, that is, if the law is dead, इसका मतलब है कि यदि व्यवस्था मर जाए she is loosed, means she's set free from the तो law of फिर her अब husband. वो व्यवस्था से पूरी रीति से छूट गई है। Okay, now law.
अब व्यवस्था, it says यहाँ पे लिखा that है if Mr. Law, that is he dies, यदि जो व्यवस्था है वो मर जाए then the lady is free. तो फिर जो स्त्री है वो बिल्कुल आजाद है। But let me tell you something. पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता The हूँ, law of God can never die. परमेश्वर की जो व्यवस्था है कभी मर नहीं सकती। It cannot die. परमेश्वर की व्यवस्था कभी मर नहीं सकती। How many of you believe that the law of God can never die? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं Yes. कि परमेश्वर की व्यवस्था कभी मर नहीं सकती? It can be fulfilled, परमेश्वर की व्यवस्था पूरी की जा सकती but है, it can never die. पर ये व्यवस्था कभी मर नहीं So, सकती। Mr. Law is never going to die. तो ये जो व्यवस्था है वो कभी मर नहीं सकता। So if anyone has to die, it has to be the woman. तो यदि किसी को That is you. मरना है तो वो स्त्री को मरना है। That is the only way you can be set free इसी रीति से आप आजाद हो सकते from the हैं। ever demanding husband, Mr. Law. हमेशा जो पति है जो व्यवस्थाएं मांग करता है उससे यदि आपको छुटकारा पाना है तो What to स्त्री do? को मरना होगा। What to do? तो Okay. अब क्या करें? Verse 3. तीसरी आयत, So then if while her husband liveth she be married to another man, she'll be called an adulteress. इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की ओर जाए तो वह व्यभिचारिणी Now, कहली जाएगी। but if her husband be dead, परंतु यदि उसका पति मर जाए she's free from that law, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई so है, that she's no longer an adulteress, तो तो अब वो व्यभिचारिणी नहीं though कहलाई she be जाएगी। married to another one. तो वो दूसरे से भी यदि शादी करे तो उसे कोई व्यभिचारिणी नहीं कहेगा। One thing you have to know, तो एक बात आपको समझनी होगी, if you are married to the law, यदि आप व्यवस्था से आपका विवाह हो चुका है, at the very same time if you go to grace, उसी क्षण यदि आप अनुग्रह में भी जाते हैं you will be an adulteress. तो फिर आप That is- व्यभिचारी कहलाए जाएंगे। Has to be one. आपको दोनों में से एक में रहना है, Mr. Law या तो व्यवस्था के साथ or Mr. Grace. या तो Okay. अनुग्रह के So साथ। law is demanding, तो व्यवस्था हमेशा मांग and करता like I है told you, he can never die. और व्यवस्था कभी मर नहीं See, सकती। there's no problem with Mr. Law. व्यवस्था के साथ कोई परेशानी नहीं He है, is perfect वो बिल्कुल सिद्ध है and he's got demands और वो हमेशा मांग करेगा। which has to be met. जरूरी है कि इन मांगों को हम पूरा करें। Husband can never die. पति Neither- कभी मर नहीं सकता। Neither if you're connected with the law, you can stay connected with him and go to Jesus again. No, you have to have one. ऐसा Yeah? नहीं हो सकता कि आप व्यवस्था से भी जुड़े रहें और यीशु के पास भी अनुग्रह Now- के नीचे जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। Verse 4. और चौथी आयत, Now this is good news. और ये अच्छी Read खबर it. है, Now read this for yourself so you understand. खुद के लिए पढ़िए ताकि Okay, आपको come on. अच्छे से समझ में आएगा। Wherefore, my brethren, वैसे ही है मेरे भाइयों, you also are become dead to the law by the body of Jesus Christ. तुम भी Hallelujah. मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। Wow, praise God. You know what happened here? आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ So, है? law is never going to die. तो व्यवस्था कभी नहीं मरेगा, But you know what? You died to the law. पर हम जानते हैं व्यवस्था के लिए How? हम मर चुके हैं Through the body of Jesus Christ. मसीह के शरीर के द्वारा। Amen. आमीन। Husband could not die. पति नहीं मर सकता, You could surely die, right? पर आप मर सकते हैं, And that's what happened at the cross. और यही Yeah? तो क्रूस पर हुआ। You were crucified with Christ. आप मसीह के साथ क्रूस पर You know, चढ़ाए गए। hallelujah. Amen. Man, see, the worst the law can do is kill a person. Amen. सबसे बदतर जो व्यवस्था कर सकता है वो किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता That is the है। worst the law can do. ये सबसे बदतर व्यवस्था कर And सकता that is what है, it did to Jesus. और यही व्यवस्था ने यीशु के साथ The law किया। cannot go beyond the grave. व्यवस्था कब्र के आगे नहीं जा सकता, Grace can. पर अनुग्रह जा सकता Amen. है। So the Amen. worst thing the law did was kill Jesus. Amen. तो सबसे Hallelujah. बदतर काम जो व्यवस्था ने किया वो यीशु को मार All दिया। our sin. हमारे Amen. सभी पाप, All its उसकी consequences. सभी परिणाम, We were in Christ. हम Hallelujah. मसीह में थे। And in Christ, और मसीह में रहकर all the consequences of sin, सभी amen, पाप के परिणाम were born. जो वहां पर परमेश्वर के ऊपर लादे गए, And the law judged Jesus Christ on our behalf. और Amen. व्यवस्था ने हमारे जगह पर यीशु का न्याय किया And killed him. और उसे मार दिया। We died with Christ हम मसीह के साथ मरे to the law. Now व्यवस्था read के further. लिए। Read further. आगे पढ़िए, That ye should be married to another, कि आप दूसरे के साथ विवाह कर सके, even him who is raised from the dead. All right. उसके साथ जो मरे Now, हुए से जी उठा है। you died to the law आप व्यवस्था के लिए मर गए and you were resurrected. और फिर आप पुनरुत्थान आपका And हुआ, now, और अब now you are married to Jesus, अब आपका विवाह यीशु के साथ हो गया है, who is not demanding at all.
जो बिल्कुल मांग नहीं करता, He loves you. वो आपसे बेहद प्यार करता Every है। time you make a mistake, कभी भी आप जब गलतियां करते हैं He uplifts you. तो यीशु आपको ऊपर उठाते He gives हैं, you grace, आपको अनुग्रह देते हैं, shows you His love. आपको अपनी प्रीति दिखाते हैं। Not like Mr. Law. Amen. व्यवस्था के Now, अनुसार you नहीं। are married to your husband, Jesus Christ, तो अब आपका विवाह आपके पति के साथ हो गया है जो यीशु who's मसीह got है, no demands at all. जो Amen. बिल्कुल आपसे कोई बात की मांग Because नहीं करता, He met your demands at the cross. क्योंकि यीशु ने आपकी मांग को क्रूस पर पूरा किया है।